Hello everybody. In this video we would be covering everything that you need to know about triangles. Let us start with the point that lays the foundation of a triangle. It says each triangle contains three angles that add up to 180 degrees. Now let's see what does it mean. So let us consider a triangle. I hope that you know that a triangle has three vertices. Let's name them. Vertex A, vertex B, and vertex C. And then we have three sides. Let this be the side C, let this be the side B, and let this be the side A. Now our point says each triangle contains three angles that add up to 180 degrees. अब इसका ये मतलब है कि ट्राइंगल में एक तो हमारा ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया. Now let us name this angle X, Y, and Z. Each triangle contains three angles that add up to 180 degrees. So this implies X plus Y plus Z equals 180. तो इसका ये मतलब है कि आप x कुछ भी रख रहे हैं, आप y कुछ भी रख रहे हैं, z कुछ भी रख रहे हैं, लेकिन हमारा जो फाइनल आंसर होता है वो अपॉन एडिंग दीज एंगल्स वी मस्ट गेट 180 डिग्रीज. अब हमारे पास इन्फिनिटली मैनी पॉसिबिलिटीज़ है इसके लिए. लेट अस से मैं x को रखती हूँ 30, y को मैं रखती हूँ 60, z को रख लेते हैं 90. If they add up to 180 degrees, जो भी आपने angles choose किए हैं, if they add up to 180 degrees, that implies you can make a triangle with those angles. ठीक है. Let's say अगर ये 30 होता, ये 60 होता और ये 91 होता. Now these angles add up to 181 degrees. So this implies these angles do not make a triangle. तो चाहे आप यहाँ पे कुछ भी रख रहे हैं, चाहे मैं इसको 20 रख रही हूँ, दिस इज़ 60, दिस इज़ 100, हमारी सिर्फ ये हमें चाहिए, यहाँ पे हमें 180 चाहिए और इनका कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. 50, if angle x is 50, if angle y is 60, angle z is 70. All of these add up to 180 degrees. This implies we can make a triangle using these three angles. So there are infinitely many possibilities, but the condition here is that they must add up to 180 degrees. Next up, we have the concept of interior angles and exterior angles. Now, what is an interior angle? Angle that is inside a triangle, we call that angle interior angle. Let us consider an example. As the name says, interior का मतलब है the angles that are inside a triangle. ठीक है. अब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल, these are our interior angles. And just like what we discussed before, they must add up to 180 degrees. And now we have exterior angles. Exterior angles are formed when one side of a triangle is extended outwards. तो जिस तरह से इंटीरियर एंगल्स हमारे इंटीरियर एंगल्स लाई विद इन अ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल्स आपके कैसे बनते हैं कि आप किसी भी ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटेंड कर दें, यू विल ऑब्टेन एन एक्सटीरियर एंगल. हम इस साइड को एक्सटेंड कर दें, यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा. ठीक है. तो आप इस साइड को एक्सटेंड कर दें तो यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा. तो दीज आर द एंगल्स दैट लाई outside a triangle and we obtain them by extending a side of a triangle. The second point says the measure of an exterior angle of triangle is equal to the sum of the opposite interior angles. अब अगर आपके पास ये triangle है, let's say this is 60, this is 60, this is 60, और हम इस साइड को एक्सटेंड कर देते हैं. ठीक है. दिस इज x. अब इसकी वैल्यू हमें कैसे मिलेगी?
इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो द थ्योरम स्टेट्स दैट द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर ट्राइंगल्स। इंटीरियर इसके ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं? एक ये एंगल इसके ऑपोजिट है और एक ये एंगल इसके ऑपोजिट है। तो x would be equal to the sum of the opposite interior angles, that would be 60 plus 60, that is 120. x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 120। एंड ऑल्सो इफ़ यू नोटिस हमारे पास ये क्या चीज़ बन जाती है, एक लाइन का एंगल, यानी कि 180 डिग्रीज। इफ़ यू नो दैट दिस एंगल इज 60, तो ये एंगल क्या होगा, 180 minus 60, एंड स्टिल यू गेट 120। अब अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, लेट्स से लेट्स एक्सटेंड दिस साइड। अब अगर मुझे ये एंगल पता करना है, अगेन इसके ऑपोजिट एंगल्स हमारे ये हैं 60 और 60, तो दिस एंगल वुड बी इक्वल टू 60 प्लस 60, दैट इज़ 120। एंड ऑल्सो फिर हमारे पास एक लाइन का एंगल बन रहा है, दैट इज़ 180। यू कैन ऑल्सो ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एक्स बाय सब्ट्रैक्टिंग 60 फ्रॉम 180, still we will be getting 120. And the last point says the sum of all exterior angles of triangle is 360. अब जैसे हम कहते हैं ना कि इंटीरियर एंगल्स, लेट्स से ए बी सी, आपके पास 3 इंटीरियर एंगल्स हैं ए बी सी, तो दे ऐड अप टू 180 डिग्रीज, राइट। तो इसी तरह से जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, लेट्स से वी हैव 3 एक्सटीरियर एंगल्स एक्स वाई जी। नाउ एक्सटीरियर एंगल्स मस्ट ऐड अप टू 360 डिग्रीज, ठीक है। तो अब कोई भी मतलब एक्सटीरियर एंगल आपका जो भी बन रहा है ना, दे वुड इवेंचुअली ऐड अप टू 360 डिग्रीज। Next up we have equilateral triangles. An equilateral triangle is a triangle in which all three sides are equal and each angle is 60 degrees. Now equilateral triangle is a special type of triangle जिसकी properties हम discuss करते हैं, ठीक है। We have a triangle like this, ठीक है। अब यूजुअली हमारे पास क्या होता है कि एक आपके पास इनके एंगल्स होते हैं, एक्स होता है, वाई होता है, जी होता है, ठीक है, और ये हमारी साइड्स हो जाती हैं। ये आपका एक कोई भी नॉर्मल ट्राइंगल है, लेकिन इसी ट्राइंगल को आपने एक ट्राइंगल की स्पेसिफिक कैटेगरी में शामिल करना है, जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाती है। तो वो कैसे होगा? Let's focus on the definition again. An equilateral triangle is a triangle in which all three sides are equal. यानी कि आपकी तीनों sides, ये side और ये side जो है वो same होनी चाहिए. If this side is A, so this implies this side is A and this side is A as well. Next it says each angle is 60 degrees. यानी ये भी आपका 60 होगा, ये भी एंगल 60 होगा और ये भी एंगल 60 होगा, ठीक है। अब 180 यूजुअली हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि आपके जो भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं दे ऐड अप टू 180 डिग्रीज, ठीक है। अब 180 को अगर आपने परफेक्टली डिवाइड करना है 3 एंगल्स में, क्योंकि हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंडीशन होती है कि आपकी साइड्स भी सेम हो और एंगल भी सेम हो। अब एंगल को सेम होने के लिए ये ज़रूरी है कि आप 180 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। 180 डिवाइडेड बाई 3 gives us 60. सो दिस इज़ द वेरी रीज़न कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपके तीनों एंगल्स 60 डिग्रीज के हैं। तो इफ दिस साइड इज़ ए, दिस इज़ गोइंग टू बी ए एज वेल एंड दिस वुड बी ए एज वेल। तो हमारी तीनों साइड्स और तीनों एंगल सेम हो गए, और ये बात है कि 60 + 60 + 60 दे ऐड अप टू 180 डिग्रीज। Next up we have isosceles triangle. An isosceles triangle is a triangle in which 2 of the 3 sides are equal and 2 of the 3 angles are also equal. ठीक है? अब this is our any other triangle. If we want to convert this into an isosceles triangle, then what changes do we need to make?
Let's look at the definition. The definition says that the two of the three sides have to be same. अगर हम लोग कोई भी दो sides, let's say if this side is B, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि आपकी एक और साइड B होनी चाहिए. Let's make this side B, ठीक है. और ये साइड आपकी A रहेगी क्योंकि we are dealing with an isosceles triangle and not an equilateral triangle. फिर हमारी सेकेंड कंडीशन आती है दैट टू ऑफ द एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. अब अगर दो साइड्स इक्वल हो गई तो आपके दो एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए. लेकिन कौन से दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए? द एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स. यानी अगर ये बी है आपका तो इसका ऑपोजिट एंगल ये है. तो दिस एंगल, इफ दिस एंगल इज एक्स, तो इस बी का ऑपोजिट एंगल इज दिस वन एंड दिस वुड बी एक्स इज वेल. और ये आपका जी हो जाएगा. Next, we have a key fact that says in any triangle, the longest side is opposite to the largest interior angle. The shortest side is opposite to the smallest interior angle. Furthermore, equal sides are opposite equal angles. तो आपकी जो सबसे बड़ी साइड है ट्राइंगल की, let us consider this triangle. हमारा जो सबसे बड़ा एंगल होगा, let's say this is 70. let this be 60 and let this be 50. ठीक है. तो 70 के ऑपोजिट जो भी आपकी साइड है दैट वुड बी द लार्जेस्ट साइड. let this side be x. 60 के ऑपोजिट हमारे पास y होगी और 50 के ऑपोजिट आपके पास z है. नाउ 50 is less than 60, 60 is less than 70, so that implies 50 के ऑपोजिट हमारे पास है z, 60 के ऑपोजिट इज y और 70 के ऑपोजिट इज x. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि x जो है दैट इज द लार्जेस्ट साइड एंड z इज द स्मॉलेस्ट साइड. एंड देन वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट दैट सेज इक्वल साइड्स आर ऑपोजिट इक्वल एंगल्स. दिस इज द सेम दैट वी डिस्कस्ड इन द केस ऑफ isosceles triangle. If you've got two equal sides, equal angles, let this be 60, let this be 60. तो इनकी ऑपोजिट साइड्स जो होंगी, इफ दिस इज एक्स देन दिस वुड बी एक्स इज वेल. एंड फर्दरमोर इफ यू हैव अनदर एंगल, लेट दिस बी 60 इज वेल. तो इसका मतलब है कि ये साइड भी एक्स ही होगा. तो इक्वल साइड्स आर ऑपोजिट इक्वल एंगल्स. तो आपके जो भी एंगल्स जो है ना उनका मेजर डिटरमिन करता है कि आपकी साइड्स किस तरह की होंगी. ठीक है. तो अगर हमारे पास यहाँ पे 70 सबसे बड़ी साइड थी एंगल था तो उसका मतलब है कि जो उसकी ऑपोजिट साइड होगी दैट वुड बी द लार्जेस्ट वन. ठीक है. और अगर 50 आपका सबसे छोटा एंगल है तो उसका मतलब है कि इसकी ऑपोजिट जो साइड होगी दैट वुड बी द स्मॉलेस्ट साइड. ठीक है. और अगर आपके पास इक्वल साइड्स हैं दो साइड्स तो उसका मतलब है कि उनकी ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे. Next, we have another key fact that states that the length of any one side of triangle must be less than the sum of other two sides and greater than the difference between the other two sides. यानी कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, आपकी ये साइड A है, ये B है, ये C है, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट कोई भी आप इनमें से साइड चूज़ कर लें. लेट्स से हम B ले लेते हैं. ठीक है. तो B must be less than the sum of other two sides. यानी B must be less than A plus C and greater than the difference between the other two sides. यानी इन दोनों का डिफरेंस जो हो B must be greater than the difference. ठीक है. इसी तरह से आप कोई और साइड पे कर लें A. अगेन वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी. A must be less than the sum of B plus C and it must be greater than the difference of B and C. Now let's do an example. We have a triangle with sides 3, 5 and 9. Now do you think it is possible for this triangle to exist? So we need to work out this inequality to determine कि ये practically possible है इस triangle का exist करना या नहीं. अब हम कोई भी दो साइड्स ले लेते हैं. ठीक है. 5 और 3 ले लेते हैं. ठीक है. अब अगर मैं यही वाली स्टेटमेंट इस पे अप्लाई करूँ,
हम लोग b को कंसिडर कर लेते हैं 9, ठीक है। अब दिस 9 मस्ट बी लेस देन द सम ऑफ द टू साइड्स, 9 must be less than the sum of two sides and it must be greater than their difference. So difference क्या होगा 5 minus 3, ठीक है। So is 9 greater than the difference? Yes, it is. 9 is greater than 2. But is 9 less than their sum? Is 9 less than 8? No, 9 is not less than 8. And since the sides of this triangle are violating our this statement, so we would say that it is impossible for this triangle to exist. And ये जो भी आपका triangle होगा, it has to follow this rule. And only then it would be called a triangle. Next, we have a formula for area of triangle. The formula says that the area of triangle equals 1 over 2 into base multiply height. अब triangle में एक base क्या होती है और height क्या होती है? Let us consider a triangle, ठीक है? Now, the height of triangle is defined as the length of a perpendicular line drawn from the point of the triangle to its base, ठीक है? एक वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन आप एक्सटेंड करें, ठीक है, दिस लाइन, और वो जाके जिस साइड को टच करती है दैट साइड इज कॉल्ड द बेस और दिस लाइन इटसेल्फ इज कॉल्ड द हाइट, ठीक है। तो ये किसी भी एक वर्टेक्स से एक्सटेंड कर सकती है, यहाँ से आप करें, बट द कंडीशन इज that this has to be a perpendicular line, ठीक है। तो एक वर्टेक्स से ये एक्सटेंड करती है और जिस साइड के ऊपर जाके ये टच करती है ये उसकी बेस हो जाती है। तो आप किसी भी वर्टेक्स से आप हाइट कंसिडर या फिर आप हाइट कंसिडर करें तो हमारा एरिया जो है वो इवेंचुअली सेम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि बेस आपकी चेंज हो जाती है। अब इस केस में अगर हम ये वाला देखें तो इसमें हमारी बेस ये है, अगर आप इसको हाइट कंसिडर करते हैं तो इसमें आपकी बेस ये है, और अगर आप इसको हाइट कंसिडर करते हैं तो आपकी बेस ये होगी, ठीक है। एंड द कंडीशन है इसके इट हैज़ टू बी अ परपेंडिकुलर लाइन, और परपेंडिकुलर यानी यहाँ पे ये 90 का एंगल बना रही है, यहाँ पे ये 90 का एंगल बना रही हो, यहाँ पे ये 90 का बना रही हो, और यहाँ पे ये 90 का एंगल बना रही हो, ठीक है। अब लेट अस सी एन एग्जांपल, ठीक है। अब ये हमारा एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज आवर हाइट जो कि एक वर्टेक्स से एक्सटेंड करिए एक साइड पे, ठीक है, और साइड क्या है आपकी, साइड बी सी। तो बी सी इन दिस केस इज आवर बेस, और ये 6 जो है ये आपकी हाइट है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सेज दैट द एरिया इज इक्वल टू 1 over 2 into base multiply height, that is 1 over 2 into 24, and this gives us 12. The area of this triangle is 12. Now let us solve another example. अब एक हमारे पास ये triangle है, ठीक है। अब how do I find its height? हाइट आप आसान, जब थोड़ी सी हमारे पास इरेगुलर शेप आ जाती है ना, यूजुअली तो हम क्या कहते हैं कि एक नॉर्मल ट्राइंगल है, सीधा आप निकाल सकते हैं उसकी हाइट। तो इसका आसान तरीका ये होता है कि आप एक डॉटेड लाइन एक्सटेंड करें यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो हाइट का क्या मतलब होता है कि आपने यहाँ से एक बेस से एक वर्टेक्स से बेस की तरफ आपने एक लाइन एक्सटेंड करनी होती है, ठीक है। अब दिस इज आवर बेस, तो अब इसकी, अब लेट्स से इसकी हाइट, इस बेस की लेंथ है आपकी 5 और इस हाइट की लेंथ हमारे पास 6 होगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल वुड बी 1 over 2 5 into 6, दैट इज 1 over 2 into 30 एंड दैट इज 15, ठीक है। अब कंडीशन हमारी सिर्फ ये होनी चाहिए कि जो लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर एंड दैट इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द बेस, ठीक है। अब
ज़रूरी नहीं है, ये मैंने अपनी आसानी के लिए इसको यहाँ पे बनाया, आप इसको यहाँ पे भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये विजुलाइज करना आसानी से हो जाता है। ये हम आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं कि इट इज़ परपेंडिकुलर, ठीक है, अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जस्ट फॉर योर ऑन सेक, अपनी आसानी के लिए आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, वरना हम किसी और तरह से भी इसको ऐसे कर सकते हैं कि दिस इज़ 90, बट ये 90 इतना लगता नहीं है, ठीक है, अगर हम रफली इसको ड्रॉ करें तो इसलिए इट्स बेटर टू गो विद दिस अप्रोच, और लाइक इट अवॉइड्स कन्फ्यूजन्स एज वेल।